हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का पेपर सोल्यूशन क्लास 12 बोर्ड का करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सेक्शन ए was multiple choice question and answers. The very first question is select and write the correct answers of the following multiple choice types of questions. The first one is histones are rich in. You know very well the answer will be A, lysine and arginine. Correct option is answer A. A option is your correct answer, lysine and arginine. The next question is how many mitotic divisions take place during the formation of a female gametophyte from a functional megaspore? So answer is option C, 3. Option C, 3. Which of the following is the only gaseous plant growth regulator? Option C, ethylene. एथिलीन इज अ सिंपल गैशियस प्लांट. बच्चों आपको अच्छे से पता है कि ये एक ग्रोथ रेगुलेटर है. सो इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. ये फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th इज pH ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर इज इन द रेंज ऑफ, it should be in range of 5 to 5.8. Option B is your correct answer. The optimal pH for most of the tissue culture is in the range of 5.0 to 6.0. As at pH higher than 7 and lower than 4.5, the plant cells stop growing. In cultures, क्या होता है अगर pH वैल्यू 5 से 6 के बीच में रहती है तो वो ऑप्टिमल सही मानी जाती है. लेकिन अगर अबाव 6 रहेगी तो क्या रह जाएगा, वो प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा और इट विल बिकम अ हार्ड अपीयरेंस व्हाइल pH below 5 does not allow gelling of the medium. Okay, so the correct option is then coming to 5th question. Ribet-Popper hypothesis is an analogy to explain the significance of. So the correct option is biodiversity. The question number 4th is which of the following group shows ZW to ZZ type of sex determination? And you know very well the option will be bird, but here bird option is not given, so we are going to take option A, pigeon, parrot and sparrow, क्योंकि ये तीनों की तीनों birds category में आती हैं and the birds have sex determination ZZ to ZW. That is ZZ is the male which is homogametic. ओके जो ZZ होता है बच्चों वो मेल गैमेटिक होमोगैमेटिक रहता है, जबकि ZW फीमेल्स में रहता है जो कि हेट्रोगैमेटिक रहेगा. सो द फीमेल गैमेट्स डिसाइड द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग. हमेशा फीमेल ही डिसाइड करेगी कि ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा. टोटल नंबर क्रोमोसोम्स हमेशा सेम रहेंगे दोनों मेल्स में एज वेल एज फीमेल्स. सो द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th इज इन हैम्बर्गर्स फेनोमेनन. So answer will be option B. That is chlorine diffuse into red blood cells. Chlorine will diffuse into red blood cell. I will give you a little explanation also of this. The process which occurs in cardiovascular system and refers to the exchange of bicarbonate and chloride across the membrane of red blood cells. This exchange of chlorine ion and bicarbonate ions between plasma and red blood cell is known as chloride shift. Understood, is known as chloride shift, and the phenomena of chloride shift maintains the electrical neutrality of the cell. ये जो phenomena है वो cell की electrical neutrality को बनाए रखता है, maintain रखता है. और this phenomena is also known as Hamburger's phenomenon. इसी phenomenon को Hamburger's phenomenon कहते हैं बच्चों. So the correct answer is diffusion of bicarbonate into plasma and entry of chloride ion into red blood cells at the level of tissues. Got it? Now coming to the next question, question number 8. Calcium and phosphate ion are balanced between blood and other tissues by. Option will be option A. Your correct answer will be option A, thymosin and parathyroid hormone. Parathyroid hormone. Why? The reason is parathyroid hormone एक छोट protein होती है, is a small protein, okay, which controls the calcium and phosphate homeostasis. ये क्या करता है, कैल्शियम को और फॉस्फेट होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि बोन फिजियोलॉजी को भी मेंटेन रखता है एज वेल एज बोन फिजियोलॉजी. पैराथायरॉयड हार्मोन हैज इफेक्ट एंटागोनिस्ट दोज ऑफ कैल्सिटोनिन,
Got it? Then the next reason is it works to raise the concentration of glucose in the bloodstream. Growth hormones, also known as human growth hormone, is peptide hormone that stimulates growth, cell reproduction and cell regeneration in humans and other animals. समझे बच्चों आप लोग? Now coming to the next question, 9th, in identify the incorrect statement. अभी इसमें गलत statement को हमें identify करना है. So option B wrong है बिल्कुल. In a turgid cell DPD is 0. Okay, जबकि ये option पूरी तरीके से गलत है. रीजन क्या है? क्योंकि वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट टू एन एरिया ऑफ हायर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. डीपीडी, द फुल फॉर्म ऑफ डीपीडी इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. तो हमेशा लोअर से हायर की तरफ जाएगा बच्चों वो. द वैल्यू ऑफ दिस डीपीडी इज कैलकुलेटेड एज द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड turgor pressure. In a fully turgid cell, the value of DPD, that is diffusion pressure deficit, is equal to 0 and the turgor pressure is numerically equal to osmotic pressure. In a flaccid cell, the turgor pressure is 0 and hence diffusion pressure deficit will be equal to osmotic pressure. So the option B will be the incorrect one. Now the question number 10th is which of the following is a hormone releasing contraceptive? So D option, that is LNG20, is the contraceptive hormone releasing. Okay, and LNG20 is a hormone releasing IUDs that makes the cervix hostile to the sperm and also make the uterus unsuitable for implantation. ये ऐसा contraceptive है, अगर women's इसे यूज करती है तो ये यूटेरस को क्या कर देता है? इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल कर देता है. तो आईयूडीज मोस्ट वाइडली यूज्ड और आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव है वुमेन्स के लिए, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी हुआ, बिकॉज आईयूडीज आर द मोस्ट सुटेबल एंड आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर वुमेन. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. द फर्स्ट वन इज विच डिजीज इज कॉज्ड बाय एचपीवी? यू नो वेरी वेल एचपीवी कैन कॉज cervical and other cancers including cancer of vulva, vagina, penis and anus. इन सबके कैंसर को कॉज करने में HPV का हाथ बहुत ज्यादा है. इट कैन ऑल्सो कॉज कैंसर इन द बैक ऑफ द थ्रोट. ओके, ये थ्रोट के बैक में भी कैंसर क्रिएट कर सकता है. दिस कैन इंक्लूड द बेस ऑफ द टंग एंड टॉन्सिल्स. कैंसर ऑफन टेक इयर्स इवन डिकेड्स टू डेवलप आफ्टर अ पर्सन गेट्स HPV. बहुत साल लग जाते हैं उसके सिम्टम्स दिखने में. Which device is used to clean both dust and gases from polluted air? सेकेंड क्वेश्चन, कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है डस्ट और गैसेस को क्लीन करने में polluted एयर में? तो आंसर है स्क्रबर्स. स्क्रबर्स आर टाइप ऑफ सिस्टम दैट इज यूज टू रिमूव हार्मफुल मटीरियल्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस बिफोर दे आर रिलीज इनटू एनवायरमेंट. These pollutants are generally gaseous and when scrubbers are used to specifically remove SOx, it is referred to as flue gas desulfurization. Have you understood? Desulfurization करने में वो मदद करता है. Third question is mention the name of sterile animal produced by intergeneric hybridization. So answer will be familiar examples of equid hybrids are mule. आपको बहुत अच्छे से पता होगा mule क्या है. एक हाइब्रिड है जो किसके क्रॉस से प्रिपेयर होता है? एक फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी के क्रॉस से. एंड हिनी अगेन अ क्रॉस बिटवीन अ फीमेल डोंकी एंड अ मेल हॉर्स. Pairs of complementary types like the mule and hinny are called reciprocal hybrids. Have you understood? Now the next question is question number 4. Give the name of first transgenic plant. आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसका आंसर. टोबैको प्लांट जो 1982 में प्रोड्यूस किया गया था was the first एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस था वो and was the world's first genetically modified crop. Now the next question number 5th is a child has low BMR, delayed puberty and mental retardation. Identify the disease. कौन सी disease है बच्चों ये? Intellectual disability. ID means intellectual disability. Once called mental retardation. Is characterized by below average intelligence. जब बच्चे एवरेज इंटेलिजेंसी से नीचे पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल एबिलिटी. ओके, वो मेंटली थोड़े से रिटार्डेड होते हैं. लैक ऑफ स्किल्स नेसेसरी फॉर डे टू डे लिविंग. आपको अच्छे से पता है कि स्किल्स कितनी जरूरी है हमारे रोजमर्रा की एक्टिविटीज करने के लिए. पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन एंड डू लर्न न्यू स्किल्स. वो लोग जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल है
ओके ऐसा नहीं है कि वो डिसेबल है तो कुछ कर नहीं सकते, डेफिनेटली वो कर सकता है, वो नए नए स्किल्स को सीख सकता है, बट दे लर्न देम लिटिल स्लोली, वो थोड़ा सा स्लोली सीखता है. देयर आर वेरिंग डिग्रीज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज फ्रॉम माइल्ड टू प्रोफाइल. इसमें भी कैसा रहता है कि अलग अलग यू नो व्हाट आई मीन टू से कि सब में अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटीज होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है. ओके तो माइल्ड से ज्यादा कम कैसे भी हो सकती है. द टर्म मेंटल रिटार्डिएशन इज नो लॉन्गर इन यूज, बट क्योंकि ये एक ऑफेंस माना जाता है एंड हैज अ नेगेटिव टोन ऑल्सो, तो इसका इफेक्ट अच्छा नहीं होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज अ ग्राफ. Very easy, you can do it yourself also. Okay, then coming to complete the following box with reference to symptoms of mineral deficiency. Okay, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर तो कितना इजी है, that you can go through from your textbook also. Okay, let's take, हम लोग ज्यादा theoretical questions फटाफट कर लेते हैं. Question number 8. Give an example of plant having both kidney and dumbbell shaped guard cell in stomata. Okay, kidney जो जिस प्लांट जिसके किडनी और डम शेप की गार्ड सेल्स होती है स्टोमेटा में, उसका एग्जांपल आपको यहाँ पे देना है. तो आपको अच्छे से पता है डाइकॉट प्लांट्स, मस्टर्ड इज अ डाइकॉट प्लांट एंड डाइकॉट्स हैव अ बीन और किडनी शेप गार्ड सेल. उनके डाइकॉट प्लांट्स के हमेशा किडनी शेप के गार्ड सेल्स रहते हैं दैट गार्ड द स्टोमा, जो उनके स्टोमा को गार्ड करता है. द शेप ऑफ द गार्ड सेल इन मोनोकॉट सच एज ग्रासेस एंड शुगर केन इज डम बेल शेप, जबकि ग्रासेस और शुगर केन के डम बेल शेप के रहते हैं. नाउ कमिंग टू सेक्शन बी. ओके, अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसमें आपको 8 क्वेश्चंस करने थे, हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं इनके भी वन बाय वन. क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन द टर्म ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और जीपीपी ओके इज द रेट एट विच सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड इन शुगर मॉलिक्यूल्स. सोलर एनर्जी को कैसे कैप्चर किया जाता है शुगर मॉलिक्यूल्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के समय. ओके, एनर्जी कैप्चर्ड पर यूनिट, एनर्जी कैप्चर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको मेंशन करना जरूरी है क्योंकि वो हर एक यूनिट टाइम पे वो कितनी एनर्जी कैप्चर कर रहा है. ओके, प्रोड्यूसर्स सच एज प्लांट यूज सम ऑफ दिस एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड सम फॉर ग्रोथ. अंडरस्टूड. नाउ कमिंग टू बी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या एनपीपी कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ बायोमास एंड एनर्जी. कितना एनर्जी और कितना बायोमास हमने इकट्ठा किया है उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं. एनर्जी यूटिलाइज ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ग्रॉस प्रोडक्टिविटी. अब आपने कितना एनर्जी यूटिलाइज किया है अपनी अलग अलग प्रोसेस, जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस करते समय, रेस्पिरेशन एक टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो करते समय आपने कितना एनर्जी यूटिलाइज कर लिया है. ओके, एनपीपी इज कैलकुलेटेड प्राइमरी बाय एन इंक्रीज इन द बायोमास इन अ यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. I hope you have understood. Now coming to the next question 4. Draw a neat diagram of thyroid gland and label thyroid follicle, follicular cells and blood capillaries. Here I am giving you the photo of the diagrams. Just go through it. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम्स बना के मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं और पूरा उसका लेबलिंग भी किया है. जस्ट गो थ्रू दीज डायग्राम्स. ओके, इसमें आपको पूरा यहाँ पे थायराइड फॉलिकल्स भी बताया गया है, पैराफॉलिकल सेल्स भी मेंशन किया गया है. ओके, सो ऑल आई हैव मेंशन. जस्ट गो थ्रू द डायग्राम. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5. गिव रीजन. ABA is also known as anti-transparent and the B question is explain the role of chlorophyllous enzymes in banana. The answer of option A, fifth question option A, that is ABA is also known as anti-transparent, is during stress a plant hormone that is ABA, और इसे क्या कहते हैं हम. ओके, इसे एब्सिसिक एसिड भी कहते हैं. एबीए को क्या कहते हैं? एब्सिसिक एसिड, विच इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और एनकरेज करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा को बंद करने में मदद करता है. ये आपको ये जो क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, इससे क्या होता है, जब स्टोमेटा आर द होल्स, यू नो वेरी वेल, पोल्स, जो क्या करता है, वाटर ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है. लेकिन जब ये पोर्स ही बंद हो जाएंगे, या बंद नहीं, पूरी तरीके से बंद नहीं, लेकिन डिमिनिश हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, तो वो भी कम हो जाएगा ऑब्वियसली, है या नहीं. तो इट विल डिमिनिश द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड एनहांस द वाटर स्ट्रेस रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, और पानी की रेजिस्टेंस कैपेसिटी को बढ़ा देगा. दस एबीए इज कंसिडर्ड एज द एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन, इसीलिए इसे एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन कहते हैं. अभी बी था हमारा एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लोरोफिलाइसिस एंजाइम इन बनाना. सो आंसर विल बी chlorophyllasis functions in
इन विट्रो ये कैसे काम करता है? इन विट्रो बोथ इन द अटैचमेंट एंड रिमूवल ऑफ फाइबोल साइड चेन टू द पोर्फिरिन न्यूक्लियस ऑफ क्लोरोफिल एंड प्रोक्लोरोफिल तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या रहता है कि ये इन विट्रो attachment it functions as in vitro and removal of fibrous side chains to porphyrin nucleus of chlorophyll and prochlorophyll moiety 2 to 4 and is probably important. Chlorophyllase is the enzyme that catalyzes chlorophyll by removing the phytol group will result in chlorophyllide formation. I hope you understood. Coming to the next, again the answer is more elaborate, so you have to mention this also. I'm giving you more explanation that this enzyme is present in chloroplast. ये जो enzyme है वो कहाँ present होता है? Chloroplast में present होता है और इसकी जो organelles होती है they undergo degradation before and during maturation and color change in the fruits rind. इसके fruits के rind में color changes हो जाते हैं. The tropical temperature to elucidate the tropical temperature effect on the chlorophyll degradation pathway contents of CHLS and their green breakdown products and activates the chlorophyllase and Mg. What is Mg? Okay, this Mg decatalyze. So I'll repeat this point for you. To elucidate the tropical temperature effect on the chlorophyll degradation pathway contents of CHLS and their green breakdown products and activities of chlorophyllase and Mg decatalysis were monitored during banana and plantain fruit ripening at 20 degrees Celsius versus 30 degrees Celsius. The result indicate that uneven degreening of banana fruit. इसमें क्या हो जाएगा? जो banana fruit होगा वो unevenly degreen हो जाएगा higher temperature की वजह से and may be ascribed to inhibition of chlorophyll degradation pathway presenting as higher level of retained CHLS and their green breakdown. So moving to the next question, question number C. ये एक टेबल है, ओके, चार्ट दिया हुआ है आपको, ओके, ह्यूमन डिजीजेस का और डी उसका आर DNA टेक्नोलॉजी का. So just go through it from your textbook. Now coming to the next question number 7. Define imbibition. Imbibition क्या होता है? Imbibition is a special type of diffusion. क्या है? एक अलग टाइप का स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जो कहाँ होता है? इट टेक्स प्लेस व्हेन लिक्विड इज एब्सॉर्ब्ड बाय सॉलिड कोलाइड्स कॉजिंग एन इंक्रीज इन वॉल्यूम. वाटर सरफेस potential movement take place along a concentration gradient. Some dry material absorb water. इसमें क्या रहता है? जो भी ड्राई मटेरियल होगा वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो वाटर सरफेस होती है, ओके, उसका जो मूवमेंट कैसा रहता है? कंसेंट्रिक ग्रेडियंट के हिसाब से रहेगा. अ ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इज एसेंशियल फॉर इम्बिबिशन. इसके लिए क्या जरूरी है? ग्रेडियंट का होना बहुत जरूरी है, ओके, एब्जॉर्बेंट और लिक्विड के बीच में. नाउ आवर बी part of this question is explain how imbibition helps root air in absorption of water. तो प्लांट्स के जो रूट एयर होते हैं वो पानी को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्बिबिशन. तो इम्बिबिशन कैसे मदद करता है उनको, इसका एक्सप्लेनेशन होगा. द फर्स्ट इंट्रैक्शन ऑफ वाटर एंड द रूट एयर सेल इज ड्यू टू इम्बिबिशन ऑफ वाटर. इम्बिबिशन ऑफ वाटर की मदद से ही रूट का और पानी का इंटरेक्शन होता है और इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहते हैं. दिस वाटर देन एंटर्स द सेल ऑफ द रूट एयर बाय ऑस्मोसिस. The movement of water is due to the difference in the osmotic pressure. Now question number 8. Draw a neat diagram of conducting system of human heart and label AV node, bundle of hairs and Purkinje fibers. आपको मैंने यहाँ पे एक नीट लेबल डायग्राम बताया है ह्यूमन हार्ट का. आपको अगर आप डायग्राम को अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ बंडल ऑफ हेज भी बताया गया है. लेफ्ट बंडल ऑफ हेज एज वेल एज राइट बंडल ऑफ हेज आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर. देन Purkinje fiber is also mentioned over here in this diagram. So just go through the diagram, study it properly. This was the correct answer. Okay. Now coming to the question number 9, that is distinguish between heterochromatin and euchromatin with reference to staining property and activity.
Over here, I'm mentioning you the difference between both euchromatin and heterochromatin on the basis of different things. The first basis is form. According to the form, euchromatin is loosely packed form of DNA, whereas heterochromatin are tightly packed form of DNA. Then the density of DNA is low in euchromatin and the density of DNA is higher in heterochromatin as comparison to euchromatin. Then where they are found, okay, euchromatins they are found in prokaryotes as well as eukaryotes, okay, जबकि heterochromatin आपको सिर्फ और सिर्फ eukaryotes में ही मिलेंगे. इनका जो स्टेट होता है, स्टेट euchromatin का स्टेट एक्टिव रहता है जबकि heterochromatin का स्टेट इनएक्टिव रहता है. रेप्लिकेशन अगर आप देखेंगे तो euchromatin बहुत ही जल्दी अर्ली रेप्लिकेटिव होते हैं जबकि ये हेटेरोक्रोमेटिन लेट रेप्लिकेटिव होते हैं. स्टिकी और नॉन स्टिकी बेसिस अगर हम स्टडी करें तो यूक्रोमेटिन यू आर गोइंग टू सी देम इन द रीजंस. उनके जो रीजंस होंगे दे आर नॉट स्टिकी जबकि हेटेरोक्रोमेटिन के रीजन स्टिकी पाए जाएंगे. So this was distinguished between both of them. Now coming to the next question number 10. Complete the following chart regarding energy flow in an ecosystem and rewrite. आप बहुत ही easy सा है, आप खुद ही अटेंड कर सकते हैं. ये तो अपने टेक्स्ट बुक से जस्ट सी दैट. ओके, जो भी टेबुलर फॉर्म के क्वेश्चन है वो मैंने आप पे छोड़ दिया है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज ए. व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन? क्या होता है बायोफोर्टिफिकेशन? बच्चों एक प्रोसेस होता है. किस टाइप का प्रोसेस? ब्रीडिंग क्रॉप्स का. ओके, विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड फैट कंटेंट्स. क्रॉप की अच्छी क्वालिटी चाहिए ना हमें, तो इसके लिए उनमें हम ये सारे के सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट कंटेंट्स इन सबको प्रोवाइड कराने के लिए हम उनको ब्रीड करते हैं. ओके, दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. इससे लोगों की अच्छी हेल्थ उनको अच्छी हेल्थ देने के लिए हम इस टाइप की ब्रीड को इजाद किया जाता है. ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विद इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज अंडरटेकन टू इम्प्रूव द कंटेंट ऑफ प्रोटीन, ऑयल, vitamins, minerals and micronutrients in crop. It is also undertaken to upgrade the quality of oil and proteins. यहाँ तक कि ऑयल और प्रोटीन्स की क्वालिटी को अपग्रेड करना अगर आपको किसी फसल में, तो उसके लिए भी इसे काम में लिया जाता है. An example of this is a wheat variety known as Atlas 66. बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताया गया. एटलस 66 व्हीट की जो वैरायटी है उसमें हमने इस तरीके से उसे ब्रीड किया गया विच इज हाई प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन का कंटेंट तो बहुत ही हाई होता है उसके कंपैरिजन में. तो एग्जिस्टिंग जो व्हीट है उसके कंपैरिजन में इस ब्रीड में प्रोटीन कंटेंट काफी हाई पाया जाता है. इन एडिशन देर आर सेवरल अदर इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स सच एज राइस, कैरेट, स्पिनच एक्सेट्रा विच हैव मोर न्यूट्रिशियस वैल्यूज एंड मोर न्यूट्रिएंट्स देन द existing variety. Now coming to the B question, mention one example each of fortification with reference to amino acid content and vitamin C content. इसके examples आप लिख दीजिएगा, फटाफट लिख के आए होंगे. Just go through it from your textbook whether you written correct or not. Now coming to the question number 12, differentiate between X chromosome and Y chromosome with reference to length of non-homologous regions and type of preposition of centromere. Okay, तो मैं यहाँ पे आपको एक डिस्टिंग्विश बता रही हूँ इसका चार्ट के थ्रू. जस्ट listen to me and go through it. okay, X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम साइज के बेसिस पे X क्रोमोसोम जो है वो लॉन्गर होते हैं देन द Y क्रोमोसोम, जबकि Y क्रोमोसोम शॉर्टर होता है X क्रोमोसोम के कंपैरिजन में X क्रोमोसोम से. ओके, नाउ कमिंग टू द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर. ओके, इसका सेंट्रोमेयर किधर लोकेटेड होता है? सेंट्रोमेयर इज प्रिसाइजली लोकेटेड इन द सेंटर ओके ऑफ द क्रोमोसोम, हैंस इट इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक, क्योंकि ये सेंटर में इसलिए से मेटासेंट्रिक कहते हैं. जबकि वाई क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन द वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के एक एंड में, इसलिए इसे एक्रोसेंट्रिक कहा जाता है. नाउ एक्स क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है और वाई क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? तो एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, जबकि वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन मेल. नाउ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, फीमेल हैव 2 कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड मेल हैव ओनली 1 कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जबकि वाई क्रोमोसोम में मेल्स हैव ओनली 1 कॉपी ऑफ वाई क्रोमोसोम एंड फीमेल्स लैक. फीमेल्स में तो होता ही नहीं है वाई क्रोमोसोम. ओके, कंटेंट अभी एक्टिव जीन्स के अगर हम कंपेयर करें दोनों का, तो एक्स क्रोमोसोम में लार्ज अमाउंट ऑफ जीन्स हो गए, जबकि वाई क्रोमोसोम में लेसर अमाउंट ऑफ जीन्स पाए जाते हैं. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 12 फिनिश होता है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन 13, डिफाइन द टर्म जेनेटिक ड्रिफ्ट और सेकंड है होमोलोगस ऑर्गन्स. ओके, तो पहला वाले का जो आंसर है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एग्जिस्टिंग जीन वेरिएंट इन द पॉपुलेशन ड्यू टू रैंडम चांसेस.
Okay, genetic drift may cause gene variant to disappear completely and thereby reduces genetic variation. अभी इसमें क्या होता है, ये जीन पूरी तरीके से डिसअपियर कर देता है, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन में कमी आ जाती है, रिड्यूस हो जाता है. Okay, it could also cause initially rare alleles to become much more frequent and even fixed. Now our second B1 was homologous organs. Okay, homologous organs का आंसर होगा, homologous organs क्या होता है, is evolved organisms. ये evolved organisms होते हैं and serve as the source of evidence for biological evolution. ये हमें एक प्रूफ एविडेंस देता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए. ओके, ये जो ऑर्गन्स होते हैं शो दैट देयर आर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर ओरिजिन विथ लिटिल चेंजेस. जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में ओरिजिन के टाइम पे और उसके बाद क्या उनमें थोड़े बहुत लिटिल चेंजेस आए हैं. होमोलोगस ऑर्गन्स, द ऑर्गन्स फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव कॉमन ओरिजिन एंड सम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफर इन द फंक्शन they carry out are called homologous organs. Examples of homologous organs include the forelimb of man, the forelimb of cat, the flippers of whale and the wings of bat. The forelimb of a man are used for grasping. पकड़ने, आपको पता है ये कोई भी चीज को हम ग्रास्प किससे करते हैं, with the help of our forelimbs. Okay, and the cat uses the forelimb for running, the whale uses its flipper for swimming and the bat uses its wings for flying. समझ में आ रहा है बच्चों? Now question number 14 का एक क्वेश्चन था, व्हाट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन. तो एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, ये वो मेथड है कंजर्विंग का. सो इट इज अ मेथड ऑफ कंजर्विंग ऑल द लिविंग स्पीसीज इन द आर्टफुल हैबिटेट दैट रिफ्लेक्ट्स देयर नेचुरल लिविंग हैबिटेट. देखिए, एक उनके नेचुरल हैबिटेट को बनाए रखते हुए एक आर्टफुल हैबिटेट क्रिएट किया जाता है जिसमें उनको उन स्पीसीज को कंजर्व करके रखा जाता है. एग्जांपल अगर हम देखें एक्स टू कंजर्वेशन का, तो वो बायोडाइवर्सिटीज इंक्लूडिंग एक्वेरियम में आप देखते हैं रखते हैं हम लोग, बॉटनिकल गार्डन्स प्रिपेयर करते हैं, देन कायरोप्रिजर्वेशन हम लोग बनाते हैं, डीएनए बैंक, जूज एक्सेट्रा. तो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ एक्स टू कंजर्वेशन. एक्स टू कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है, एक्स टू कंजर्वेशन मीन्स कंजर्वेशन आउटसाइड द हैबिटेट. उनके हैबिटेट से बाहर हम उनको प्रिजर्व करके कैसे रखते हैं, बाय परपेचुएटिंग सैंपल पॉपुलेशन इन जेनेटिक रिसोर्स सेंटर्स. कैसे उनकी जेनेटिक रिसोर्स सेंटर्स में हम उनकी रेस को आगे बढ़ाने के लिए हम उनको एक्स सिटू कंजर्वेशन में रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल जूस, बॉटनिकल गार्डन्स एक्सेट्रा, और इन द फॉर्म ऑफ जीन पूल्स और गैमेट स्टोरेज, जर्म प्लाज्म बैंक्स फॉर सीड्स, पोलन्स एक्सेट्रा. दिस वाज द आंसर. नाउ कमिंग टू सेक्शन सी, दैट इज यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 8. आपने कौन से किए, जस्ट गो थ्रू इट. क्वेश्चन नंबर 15 का ए, डिफाइन इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है. ओके, सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ फॉर्म ऑफ जीन इंटरेक्शन इन विच बोथ एलेल्स ऑफ अ जीन एट अ लोकस आर पार्शियली एक्सप्रेस्ड, often resulting in an intermediate or different phenotype. It is also known as partial dominance. इसे partial incomplete और partial dominance भी कहते हैं. इसका बी, इन अ रेड फ्लावर मिराबिलिस जलापा प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ व्हाइट फ्लावर प्लांट. ओके, क्या किया, मिराबिला जलापा प्लांट को व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट से क्रॉस करवाया गया. सो व्हाट विल बी फेनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन का. फेनोटाइपिक रेशियो आपको बताना है, शो इट बाय अ चार्ट. आपको उसको एक चार्ट भी प्रिपेयर करना था. आपने क्या किया है, जस्ट सी A red flowered mirabilis jalapa, that is RR हमने उसको लिया क्योंकि रेड है तो हमने उसको कैपिटल R लिख दिया. इस क्रॉस टू व्हाइट फ्लावर्ड मिराबिलिस जलापा जिसको हमने स्मॉल r से बता दिया. ओके, व्हाइट है. द जो F1 जनरेशन थी, ओके, इंडिविजुअल्स आर, उसमें कौन सी किस टाइप के पैदा होंगे, हाँ, उसमें पिंक फ्लावर्ड पैदा होंगे, यानी एक रेड और एक जो स्मॉल r वो रिप्रेजेंट करेगा उसको. पिंक फ्लावर्स, सारे के सारे पिंक फ्लावर्स होंगे. व्हेन F1 इंडिविजुअल्स आर सेल्फ क्रॉस, अभी ये F1 के इंडिविजुअल जब आपस में क्रॉस करेंगे तो F2 जनरेशन पैदा होगी. ओके, और F2 जनरेशन में क्या होगा, एक प्लांट विथ रेड फ्लावर होगा और सेकेंड प्लांट विथ पिंक फ्लावर एंड अगेन वन प्लांट व्हाइट फ्लावर आर फॉर्म्ड. ओके, एक रेड, एक व्हाइट और एक पिंक. तो इस टाइप का रेशियो दैट इज 1:2:1 का फेनोटाइपिक रेशियो होगा और जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 का रहेगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1:2:1. मैंने देखिए आपको यहाँ पे इसका एक डायग्राम भी बताया है. ओके, जिसमें रेड और व्हाइट दोनों टाइप के फ्लावर्स को आपस में
क्रॉस करवाया है। ओके, ये पेरेंट जनरेशन थी इसलिए इसे पी जनरेशन लिखा है। उसके बाद में इससे जो गैमीट्स आपस में फ्यूज हुए, दैट इज आर कैपिटल और आर स्मॉल। ओके, दैट इज रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर बोथ फ्यूजेस विथ ईच अदर, क्रॉस हुआ उनका। उसके बाद में F1 जो जनरेशन हुई इसमें सारे पिंक फ्लावर्स आए। ओके, आप आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द डायग्राम। ओके, तो अभी जो इसमें गैमीट्स बने वो देखिए आपको चार मैंने बताया, चारों में से क्या है, एक रेड है। ओके, दो मैंने 1:2:1 का रेशियो बताया था, तो एक रेड एक व्हाइट और दो पिंक। ओके, सो 1:2:1 का रेशियो। आई होप इट इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16. A. Differentiate between sympathetic and parasympathetic nervous system with reference to the following. Okay, इनके बेसिस पे आपको इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्वस फाइबर्स एंड इफेक्ट ऑन हार्ट बीट। देखिए आपको यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स और सिंपैथेटिक नर्व्स को डायग्राम के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे जस्ट गो थ्रू द डायग्राम, अच्छे से डायग्राम को गो थ्रू करिए, पूरा के पूरा एक्सप्लेन किया गया है विद डायग्राम। ओके, कैसे प्यूपिल्स इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स में और सिंपैथेटिक नर्व्स में प्यूपिल्स कैसे रहते हैं, देखिए इसमें कॉन्स्ट्रिक्ट रहते हैं जबकि इसमें डायलेट रहते हैं। देन सलाइवा स्टिमुलेट रहेगा आपको पैरासिम्पैथेटिक में, जबकि सिंपैथेटिक में इनहिबिट सैल्यूवेशन। हार्ट बीट विल बी स्लो इन पैरासिम्पैथेटिक, जबकि सिंपैथेटिक में हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा बड़ी हुई इंक्रीज रहेगी। ओके, एयरवेज विल बी कॉन्स्ट्रिक्ट इन पैरासिम्पैथेटिक, वेयर एज रिलैक्स एयरवेज नजर आएंगे आपको सिंपैथेटिक में। देन इट विल स्टिमुलेट एक्टिविटी टू स्टमक पैरासिम्पैथेटिक में, जबकि इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ स्टमक आपको नजर आ रही है सिंपैथेटिक नर्व्स का डायग्राम में। जस्ट गो थ्रू द डायग्राम बच्चों, आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ओके, और उसका मैंने आपको यहाँ पे उसका डिफरेंशिएट भी दिया गया है। ओके, देखिए डिफरेंशिएशन, सिंपैथेटिक में इन्वॉल्व इन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस एंड ऑल्सो परमिट्स द रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। ये आपको डाइजेस्ट और रेस्ट करने में इसके रिस्पॉन्स में हेल्प करेगा। देन सिंपैथेटिक, द सिंपैथेटिक सिस्टम प्रिपेयर द बॉडी फॉर एनी पोटेंशियल डेंजर, आगे अगर आपके सामने कोई भी खतरा आने वाला है तो उस डेंजर के लिए आपको ये तैयार करेगा। ओके, सिंपैथेटिक वाला। जबकि पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, एम्स टू ब्रिंग द बॉडी टू अ स्टेट ऑफ काम, आपकी बॉडी को एकदम शांत रखने में आपको हेल्प करेगा। सिंपैथेटिक अगेन सिस्टम है शॉर्टर न्यूरॉन पाथवेज हैंस अ फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, इसका पाथवे शॉर्ट है, इसके लिए रिस्पॉन्स तो उसको फास्ट करना ही पड़ेगा। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, हैज कंपेरेटिवली लॉन्गर न्यूरॉन पाथवे, इसका न्यूरॉन पाथवे लंबा है इसलिए स्लोअर रिस्पॉन्स टाइम। ओके, देन अगेन सिंपैथेटिक में इंक्रीजेस हार्ट बीट, मसल्स टेंस अप, हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो मसल्स तो टेंस अप होनी है। जबकि सिंपैथेटिक में क्या होगा, हार्ट बीट रिड्यूस होगी और मसल्स रिलैक्स रहेंगे। अगेन सिंपैथेटिक में प्यूपिल डायलेट्स टू लेट इन मोर लाइट, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में मैंने अभी आपको बताया था डायग्राम में, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होती है। सलाइवा सीक्रेशन जो है सिंपैथेटिक में वो इनहिबिटेड रहेगा, जबकि sympathetic में saliva secretion increases and digestion also increases. Sympathetic में in fight and flight situation में adrenaline is released by the adrenal gland, more glycogen is converted to glucose, जबकि parasympathetic में no such function exists, ऐसा कोई function exist नहीं करता है flight और fight situation में। आपको आंसर क्लियर होगा। नाउ कमिंग टू द बी ऑप्शन, दैट इज गिव रीजन ऑल स्पाइनल नर्व्स आर ऑफ मिक्स टाइप, जितनी भी स्पाइनल नर्व्स होती है वो मिक्स टाइप की क्यों होती है उसका आपको रीजन बताना है। स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम एवरी सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, हर एक सेगमेंट से निकलती है ये स्पाइनल नर्व्स। ओके, सो दे हैव बोथ डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट, उनकी डॉर्सल वेंट्रल दोनों रूट्स होती है। हर एक स्पाइनल नर्व हैज बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स, उस पर सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं, मोटर फाइबर्स भी होते हैं, इसीलिए उन्हें मिक्स नर्व कहा जाता है दोनों के होने की वजह से। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17. A. Draw a suitable diagram of replication of eukaryotic DNA and label any 3 parts. आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया है, आप इस डायग्राम को जस्ट गो थ्रू करिए। ओके, पूरा के पूरा मैंने आपको बताया है, इधर एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, नाउ कमिंग टू बी क्वेश्चन, हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स विल बी देयर इन पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्ड ऑन द फॉलोइंग mRNA. अभी ये चेन है, इसमें कितने अमाइनो एसिड्स हैं वो आप देख लीजिए, आप लिख कर आए होंगे।
नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन ब्रीदिंग. ओके, ब्रीदिंग में आपके क्या क्या स्टेप्स लगते हैं, ब्रीथ करके देख लेते हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट. ब्रीदिंग, द इनहेलेशन दैट इज moving in, okay, taking in, and exhalation that is moving out of air through the lungs is known as breathing. आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रेस्पिरेशन तो पता ही है. ब्रीदिंग मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है वो हम लिखेंगे इसमें. द ब्रीथिंग मैकेनिज्म में दो मेन स्टेप्स होते हैं. ओके, देयर आर टू मेजर स्टेप्स, दैट इज द नंबर वन इज ए, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन जिसे कहेंगे. ओके, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन यानी अंदर लेना. ओके, द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लोकेटेड ऑन द outer side of the rib cage pull to bring about expansion of the chest cavity while elevating the ribs. क्या करती है वो, आपके चेस्ट को एक्सपैंड कर देती है. ओके, when you breathe in, then the diaphragm located beneath the lungs moves downward while contraction, thus further expanding the thoracic cavity. Okay, अभी thoracic cavity जो है वो और ज्यादा एक्सपेंड हो जाती है इसमें. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, हैंस अलाउइंग एयर टू रश इनसाइड द एक्सपेंडेड चेस्ट कैविटी. ये था आपका किसका, इनहेलेशन का. नाउ कमिंग टू एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन. क्या होता है आपको पता है, ब्रीथ को बाहर छोड़ना. ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे आप. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एक्सपल्शन ऑफ एयर आउटसाइड द लंग्स, लंग्स के बाहर छोड़ना आपको. इसमें द इंटरनल intercostal muscles attached to the inner side of the ribs the internal intercostal muscles attached to the inner side of the ribs force out the air by depressing down the rib cage. The diaphragm and the abdominal muscles relax to decrease the volume of thoracic cavity. This leads to increased pressure inside the lungs. क्या हो जाएगा, लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा आपका इसमें. इसलिए इंक्रीज प्रेशर कॉजेज द एयर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स टू मूव आउट. ये जो प्रेशर इंक्रीज हुआ इसी की वजह से हम क्या करेंगे, लंग्स के बाहर हवा को बाहर निकलने देंगे. सो दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो इन प्रोसेस की वजह से ही होता है ब्रीथिंग की. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, A, what is spermatogenesis? क्या होता है spermatogenesis? Okay, and you have to draw a neat and label diagram of spermatogenesis. देखिए मैंने आपको साइड में आपको spermatogenesis का डायग्राम बताया है. इसमें spermatogonium, okay, I have showed you. Then coming to primary spermatocyte. Okay, अभी meiosis फर्स्ट में आपने देखा क्या बन रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, उसे अगेन 4 स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं और लास्टली मेच्योर स्पर्म सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं. जस्ट गो थ्रू द डायग्राम, यू हैव टू मेक इट लाइक दिस एंड एक्सप्लेनेशन विल बी. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम क्या बनता है, स्पर्म्स बनता है और क्या बनेगा. सो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द इमेच्योर जर्म सेल इन मेल के इमेच्योर जर्म सेल से क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं. इट टेक प्लेस इन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस. टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं वहां पे ये प्रोसेस होता है. ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस अ डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियम जिसे मेल जर्म सेल कहते हैं इंक्रीज इट्स साइज टू फॉर्म डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. क्या होता है इसमें, एक डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियम जो मेल सेल होता है वो अपनी साइज बढ़ा के एक डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है. ओके, दिस डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. इसमें पहला मियोटिक डिवीजन होगा विच इज रिडक्शनल डिवीजन टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. इसमें 2 इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे. हर एक जो अभी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है वो फिर से अंडरगो करेगा, इट विल अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ओके, टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स. और वो 2 इक्वल क्या करेगा, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाएगा. और उसके बाद में अ डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स. उसके बाद में कहीं जाके 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनेंगे और ये जो स्पर्मेटिड्स है आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, जो जाके स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, A, what is a connecting link? कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, चलिए देखते हैं क्या होता है कनेक्टिंग लिंक. एन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशनल कंडीशन इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन 2 टैक्सोनॉमिक क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिज्म. एक इंटरमीडिएट या ट्रांजिशनल कंडीशन होती है ये जो क्या करती है,
वही कनेक्टिंग लिंक होती है दो टॉक्सोनोमिक क्लासेस के बीच में किसी भी ऑर्गेनिज्म के। और ये जो कनेक्टिंग लिंक है इनका कैरेक्टर्स क्या होता है, हैज कैरेक्टर्स दैट आर कॉमन टू बोथ ग्रुप। अभी हमने इसमें बिटवीन टू टेक्सोनॉमिकल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के अलग अलग क्लासेस लिए है। ओके, तो डेफिनेटली क्या होगा, दोनों ही ऑर्गेनिज्म के क्या होंगे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वो इन्वॉल्व करेगा अपने उसमें। एग्जाम्पल्स है कनेक्टिंग लिंक के, Archaeopteryx is the link between reptiles and aves. Okay, the existence of teeth and tail in Archaeopteryx indicates reptilian features. अभी उनमें टीथ और टेल का होना ये तो रेप्टिलियन फीचर है। ओके, तो ये आप देखिए दो कैरेक्टर लिए हमने, अलग अलग ऑर्गेनिज्म लिए, रेप्टाइल लिया है तो रेप्टाइल का ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। और प्रेजेंस ऑफ विंग्स एंड बीक और जॉज ये क्या बताता है, एवियन फीचर बताता है। Now coming to question number 20, B part. Okay, which fossil animal is considered as the connecting link between reptiles and bird? तो वो कौन सा fossil animal है? Give any one character of each class found in it. So connecting link जो है इसमें it is an organism having characteristics of two different groups of organism. अभी इसमें दो अलग अलग ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, एक मैंने लिया reptiles और एक लिया aves which belonging to vertebrates, जो दोनों ही vertebrates है। ओके, Archaeopteryx is a connecting link between reptiles and birds as it possesses characteristics of both birds and reptiles. क्योंकि उसमें दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, इसके लिए सो Archaeopteryx possessed a long tail. अभी उसमें एक लंबी सी टेल है, jaws है, teeth in jaws and a long neck with सर्वाइकल वर्टिब्रा, ऑल आर रेप्टिलियन कैरेक्टर्स। और ये सारे के सारे रेप्टिलियन कैरेक्टर्स होते हैं। और बर्ड जैसे इट हैड विंग्स एंड बीक्स, इट वाज वार्म ब्लडेड। ओके, सो ये था उसका एक्सप्लेनेशन। टेबल आ गया भाई, फिर से डू इट योरसेल्फ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। व्हाट इज कॉम्पोजिशन ऑफ बायोगैस? बायोगैस का कॉम्पोजिशन क्या होता है? द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायोगैस आर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें मीथेन होता है, और ये तो मेन हो गए। और मेजर सोर्सेस क्या है इसकी? रिन्यूएबल एनर्जी है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके, सो द मेजर सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज बायोगैस। ये एक बहुत ही renewable source of energy is, and it is created by breakdown of organic matter in the absence of oxygen. ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन होता है तो बायोगैस रिलीज होता है, बनता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनॉर्बिक डाइजेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट, फार्म वेस्ट, फूड वेस्ट एंड एनर्जी क्रॉप। इन सबके वेस्ट मटेरियल से बनता है ये। इन बायोगैस मीथेन कॉन्स्टिट्यूट्स 50 to 75%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्स्टिट्यूट्स 20 to 50%, एंड नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूट्स 2 to 8%। थोड़ा सा ये उसका। इट इज ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रेस गैसेस इंक्लूडिंग नाइट्रस ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। थोड़ा बहुत इनका भी होता है रोल उसमें। ओके, नाउ मेजर रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बायोगैस प्रोडक्शन इंक्लूड्स कैटल डंग, नाइट सॉइल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट एक्सेट्रा। डाइजेशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्रिएट मीथेन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके ऊपर वर्कआउट करते हैं, जब उनके द्वारा डाइजेशन होता है जिससे मीथेन रिलीज होती है, इससे मीथेन क्रिएट होती है। बीइंग एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल, इट इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस एंड एज अ रोड व्हीकल फ्यूल ऑल्सो। द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बायोगैस आर इजिली, बहुत ही इजीली अवेलेबल मिल जाएगा आपको रॉ मटेरियल्स के थ्रू। सो द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बायोगैस आर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, रिड्यूस्ड हेल्थ हजार्ड्स एंड मिनिमाइज डिपेंडेंस ऑन फायरवुड। देखिए जंगल तो बहुत कम बचे हैं, इसलिए फायरवुड भी है नहीं हमारे पास, इसलिए अभी हमें इससे ही काम चलाना पड़ेगा। ओके, so this was the explanation. Now coming to B question, mention any 4 benefits of biogas. Biogas can be used as a fuel. कैसे हम इसको फ्यूल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं? तो ये उसका एक बेनिफिट हो गया। बहुत ही चीप है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इट बर्न्स विदाउट स्मोक। सबसे बड़ी बात, पोल्यूशन फ्री है, पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता क्योंकि स्मोक ही नहीं रिलीज करता इसके लिए। सो द बायोगैस डज नॉट कॉज पोल्यूशन। बायोगैस कैन बी यूज फॉर कुकिंग, डोमेस्टिक लाइटिंग एक्सेट्रा। एज बायोगैस प्लांट इंस्टॉलेशन प्रोसेस रिक्वायर वेरी लो कॉस्टिंग, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, ए पार्ट, गिव रीजन वाटर एक्ट्स एज थर्मल बफर। कैसे वो थर्मल बफर का काम करता है? बफर क्या होता है? अ सॉल्यूशन दैट असिस्ट इन मेंटेनिंग द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज बफर। क्या करता है? पीएच को मेंटेन रखता है, उसे ही बफर कहेंगे। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एनी सब्सटेंस दैट इज एबल टू मेंटेन द परसिस्टेंट स्टेट बाय रेजिस्टिंग अ चेंज इन इट। वाटर एक्ट एज अ टेम्परेचर बफर इन द फॉलोइंग मैनर। अभी वो कैसे टेम्परेचर बफर का काम करता है देखते हैं। पहला,
इसका पॉइंट होगा वाटर इज अ हाई हीट कैपेसिटी, उसकी हीट कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, एबल टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, आजू बाजू के एरिया से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड लीव बिहाइंड अ कूलिंग इम्पैक्ट, और अच्छा खासा एक कूलिंग इम्पैक्ट छोड़ देता है। दस वाटर इम्पार्ट्स अ कूलिंग इम्पैक्ट ड्यूरिंग एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन, कितना भी गर्म हो वाटर का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक कूलिंग इम्पैक्ट छोड़ेगा। दिस इज द रीजन दैट एरियाज लाइंग क्लोजर टू वाटर बॉडीज हैव अ फेयरली कांस्टेंट क्लाइमेटिक थ्रू आउट द ईयर, हमेशा एक जैसा क्लाइमेट रहता है ना, जो समुद्र के पास वाले एरिया है, सी के नजदीक वाले एरिया है, उसका रीजन यही रहता है। नाउ कमिंग टू द बी पार्ट, ड्रॉ नीट एंड proportionate diagram of root air and label mitochondria, nucleus and vacuole। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम बताया है रूट एयर्स का, ओके, उसमें मैंने सारे ये लेबलिंग भी की है, न्यूक्लियस, वैक्यूल, ओके, सो जस्ट गो थ्रू द डायग्राम। Now question number 24, explain three main functions of free antibodies produced by B lymphocytes। कौन सी फ्री एंटीबॉडीज बनाता है ये देखते हैं। फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी, फॉलोइंग आर सम ऑफ द की फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडी। अभी क्या सबसे पहले फंक्शंस देंगे गए एंटीबॉडी के, तो ये मेन फंक्शंस है एंटीबॉडी के। क्या है मेन फंक्शंस, देखिए पहला है बाइंड्स टू पाइथोजेंस, activates the immune system in case of bacterial pathogens, directly attacks viral। तो एक तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा है पाइथोजेंस असिस्ट इन फैगोसिटोसिस, एंटीबॉडी प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट पाइथोजेंस बिकॉज इट परसिस्ट फॉर इयर्स आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। उसके बाद में इट न्यूट्रलाइजेस द बैक्टीरियल टॉक्सिन्स एंड बाइंड्स द एंटीजन टू एनहेंस इट्स एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। They also act as the first line of defense for mucosal surface. They ingest cells by phagocytosis. Few antibodies bind the antigen present on the pathogens. कुछ antibodies होती है वो क्या करती है, हाँ, bind the antigen present on pathogens. These aggregates the pathogens and they remain in secretion. तो ये pathogens को ये जो these aggregates the pathogens and they remain in secretion. Then when the secretion is expelled out, the antigen is also expelled. समझे आप, जब secretion expelled हो जाएगा तो antigen भी expelled हो जाएगा। Coming to question number 25A, आपको एक डायग्राम दिया गया है, कुछ डायग्राम दिया है। Following are the diagrams of entry of pollen tube। pollen tube की एंट्री का डायग्राम दिया गया ओव्यूल में, ओके, आपको A और B को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। देखते हैं, पोरोगेमी इज द फेनोमेना ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। कौन सा प्रोसेस है, पोरोगेमी, जिसके थ्रू पोलन ट्यूब में एंट्री मिलती है इनटू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोफाइल। आई रिपीट, पोरोगेमी इज द फेनोमेनन ऑफ द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोफाइल। देन चेल्जोगेमी इज द फेनोमेना ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू चेल्जा। एंड mesogamy is the phenomenon of entry of pollen tube into the ovule through integuments। तीनों बता दिया है, पोरोगेमी, चेल्जोगेमी एंड मेसोगेमी। ओके, ये देखिए यहाँ पे तीनों के डायग्राम भी आपको दिए गए हैं, पोरोगेमी का, देन मेसोगेमी एंड चेल्जोगेमी। डिटेल्ड लेबल डायग्राम आई हैव गिवन, जस्ट लुक हियर ऑन योर स्क्रीन। Let's move to the next question. B part. Give any 4 points of significance of double fertilization. Let's see the answer. चलिए इसका आंसर देखते हैं। Significance of double fertilization, क्या इंपॉर्टेंस है डबल फर्टिलाइजेशन की, देखते हैं। It is a unique feature of angiosperm. Angiosperm का unique feature है, it ensures that parent plant invest a seed with a food store only if the egg is fertilized. The diploid zygote develops into an embryo which consequently develops into a new plant। क्या करता है डिप्लॉइड जाइगोट, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, इट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट, नया प्लांट बन जाता है। ओके, अभी द ट्रिप्लॉइड पेन डेवलप्स इनटू न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म टिश्यू। It restores the diploid condition by fusion of haploid male gamete with haploid female gametes, that is through syngamy. It also helps to avoid polyembryony.
पॉलीएम्ब्रियोनी को क्या करता है, अवॉइड करता है ये। कमिंग टू क्वेश्चन 20A, नेम द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो एंडोल 3 एसिटिक एसिड, दैट इज IAA। उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन प्लांट हार्मोन इन ऑक्सिन क्लास, सबसे कॉमन है ये। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। इट रेगुलेट्स प्रोसेस लाइक सेल डिफरेंशिएशन, सेल डेवलपमेंट और फ्रूट डेवलपमेंट में भी मदद करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट। A farmer wants to remove broad-leaved weeds from jowar plantation in his field. Suggest any plant hormone to remove such weeds. हमने स्टार्टिंग में MCQ किया था, उसमें आया था ऑक्सीन। So auxins are widely used as herbicides or weedicides to kill broad-leaved weeds. उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, broad-leaved weeds को हटा सकते हैं। Okay, dicotyledonous weeds due to their low cost and greater chemical stability. उनकी कॉस्टिंग लो होती है और केमिकल स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल ऑफ सच ऑक्सीन्स आर 2 and 4D and 2, 4 और 5T। मेंशन एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ साइटोकिनिन। उसके 2 एप्लीकेशंस बताने हमें है, क्या काम करता है। इट हेल्प्स इन प्रोमोटिंग सेल डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। फार्मर्स लोग ज्यादा यूज करते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स व्हेन अप्लाइड टू cotton seedling. Okay, it leads to a 5 to 10% increase even in drought condition. सूखा भी बढ़ जाए तब भी वो उसमें मदद करता है, इंक्रीज करता है उसमें। Okay, plays a major role in plant pathogenesis by inducing resistance against certain diseases causing bacteria. Section D, attempt any 3 of the following questions. देखते हैं क्वेश्चन 27 का A, व्हाट इज ब्लड प्रेशर। क्या होता है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पंप्ड। वो प्रेशर जिसमें ब्लड को पंप किया जाता है अराउंड द बॉडी, बॉडी के चारों तरफ बाय द हार्ट। ओके, पूरे बॉडी में ब्लड का पंपिंग तो होएगा तभी तो पूरे बॉडी तक ब्लड पहुंचेगा ना। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 फैक्टर्स, हमेशा 2 तरह के फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। दे आर कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, is the pressure at which the blood leaves the heart through aorta during the contraction phase। इसमें blood बाहर निकलता है, जबकि diastolic pressure क्या है, minimum pressure in the arteries during the relaxation phase of heart। Okay, now B part, give the names of the instrument which is used to measure the blood pressure। आपको उन instruments के नाम देने हैं जो blood pressure measure करने में मदद करता है। देखा होगा आप लोग कभी डॉक्टर के यहाँ तो गए होंगे। ओके, तो ये इंस्ट्रूमेंट का फोटो भी आपको दिखाया गया है। ओके, तो यही इंस्ट्रूमेंट है जो मदद करता है ब्लड प्रेशर मेजर करने में। आंसर विल बी टू मेजर ब्लड प्रेशर योर डॉक्टर यूजेस एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ स्पाइगमोमैनोमीटर। व्हाट इज दिस, स्पाइगोमैनोमीटर। ओके, विच इज मोर ऑफन रेफर टू एज अ ब्लड प्रेशर कफ। इसे ब्लड प्रेशर कफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कफ। द कफ इज wrapped अराउंड, इसे कफ इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा बच्चों, इसका कफ जो है वो क्या किया जाता है, हमारे अपर आर्म के ऊपर wrap किया जाता है और फिर उसे इन्फ्लेट किया जाता है। ओके, सो द कफ इज wrapped अराउंड योर अपर आर्म एंड इन्फ्लेटेड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द ब्लड इन योर आर्टरी। आपके आर्टरी की ब्लड फ्लो को स्टॉप करने के लिए उसको इन्फ्लेट किया जाता है। नाउ कमिंग टू सी, differentiate between an artery and a vein with reference to lumen and thickness of wall। artery versus vein, उसका आपको differentiation बताना है। Okay, so artery versus vein, arteries carry blood away from heart and veins carry blood towards the heart। एक काम करती है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाने में, एक काम करती है उसको वापस लेके आने में। क्यों, दूर लेके जाएंगे तभी तो वापस लेके आएंगे। प्योरिफिकेशन कैसे होगा ब्लड का अदरवाइज। So, with the exception of pulmonary blood vessels, arteries carry oxygenated blood and veins carry deoxygenated blood। अभी मैंने आपको बताया प्योरिफिकेशन यानी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा, ओके, वो आर्टरी कैरी करेगी और वेन्स क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। आर्टरीज हैव थिक वॉल्स विथ मसल टिश्यूज एंड वेन्स हैव थिनर वॉल्स। आर्टरीज की वॉल्स थिक होगी, वेन्स की थिन वॉल्स होगी। एंड यूज वॉल्व्स टू कीप योर ब्लड फ्लोइंग। वॉल्व्स की मदद से आपके ब्लड को फ्लो करवाते रहेंगे ये।
Next, coming to question number 28A, describe any 3 adaptation in Anemophilous flowers. Mention any one example of Anemophilous flower. आपको क्या करना है, इसके 3 एडेप्टेशन बताना है और एग्जाम्पल भी बताना है. देखते हैं आंसर. फ्लावर्स आर स्मॉल, न्यूमरस, इनकॉन्स्पिशियस एंड नॉट शोई. Inflorescence or flowers may be pendant so that they may swing. Stamens possess long filaments and anthers are versatile. Pollen grains are smooth, dry, light in weight. Flowers bear well exposed stamens so that they can be easily dispersed by wind currents. हवा से easily इधर उधर फैलेंगे. Okay? इसके लिए pollen grains are produced in large numbers to compensate their wastage. बहुत ज्यादा नंबर में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं. क्यों? क्योंकि वेस्टेज भी बहुत ज्यादा होता है. इसके लिए टू कैच पोलन ग्रेन्स द स्टिग्मास बिकम स्टिकी, हेयरी, फेदरी और ब्रांच्ड. फ्लावर्स आर डिवॉइड ऑफ सेंट, नेक्टर एक्सेट्रा. इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मेल फ्लावर्स आर मोर देन फीमेल फ्लावर्स एंड आर सिचुएटेड एट हायर लेवल्स. नाउ कमिंग टू बी, डिस्क्राइब एनी 3 एडेप्टेशंस इन हाइड्रोफिलस फ्लावर्स. उसके 3 एडेप्टेशन बताना है और एग्जाम्पल भी बताना है हाइड्रोफिलस फ्लावर का. हियर आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर. यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए गए हैं दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय बॉटनिस्ट. ओके, दे आर ऑफन स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस एंड आर यूजुअली डेवलप्ड वेल बिफोर द फॉलिएज. छोटे ही होते हैं. ओके, और फॉलिएज के पहले ही डेवलप हो जाते हैं सो दैट दिस डज नॉट इंटरफेयर विद द फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर अराउंड द फ्लावर. They do not develop nectarines nor are they scented. ना तो खुशबू वाले होते हैं, ना ही नेक्टर डेवलप करते हैं. मेल पार्ट टेंड टू प्रोड्यूस वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोलन्स. मेल पार्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पोलन्स प्रोड्यूस करता है बाय कंपैरिजन विथ एंटोमोफिलस फ्लावर्स. एंटोमोफिलस फ्लावर्स के कंपैरिजन में ये पोलन्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं. दिस कंपनसेट्स फॉर द इनडायरेक्ट एंड समवॉट रिस्की मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. द ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ पोलन, द ग्रेटर आर द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन. जितने ज्यादा पोलन्स होंगे उतने ज्यादा पॉलिनेशन के चांसेस भी बढ़ेंगे. द एग्रीगेशन ऑफ मेनी मेल फ्लावर्स इनटू फ्लेक्सिबल कैटकिन्स इज कॉमन अमंग ट्रीज and clouds of pollens can be seen as it is shed from the hazel, oak and other trees. The stigmas are often large, feathery and very sticky and extend well outside the flower. To remain airborne as long as possible, the pollen grains are usually very tiny, smooth-walled, dry and light. Sometimes they have air bladders. Plants with anemophilous flowers are either trees or herbaceous plants with flower high above the foliage. Thus, there is less interference with pollen dispersal or pollen captures by the stigmas. The floral adaptation of hydrophilous flowers are, अभी hydrophilous flowers के adaptations क्या है? Flowers are colorless, small, इनकॉन्स्पिशियस, विदाउट नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस. ना तो उनका कोई कलर होगा, ना फ्रेग्रेंस होगा, ना नेक्टर होगा और छोटे भी होंगे. पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स विच, ये इसके क्या होंगे? लंबे लंबे रिबन जैसे स्ट्रक्चर के होंगे पोलन्स के. ओके, एंड आर कैरीड विथ करंट ऑफ वाटर, ताकि पानी के करंट से वो बहकर इधर उधर जा सके. द पोलन ग्रेन्स आर लाइट बट कवर्ड विथ वैक्स. इसके पोलन ग्रेन्स लाइट होते हैं और वैक्सी कोटिंग रहती है उनके ऊपर, ताकि वो प्रोटेक्ट रहे फ्रॉम बीइंग वेट, गीले होने से बचे रहे. Now coming to question number 29A, what is polymerase chain reaction? PCR क्या है? Polymerase chain reaction is a common laboratory technique है, used to make many copies, जिससे कई सारी कॉपी बनाई जाती है. ओके, क्लोन्स जो बोलते हैं ना हम, वैसे कई सारी कॉपीज बनाई जाती है ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ डीएनए. डीएनए के किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन के आपको अगर कितनी भी कॉपी बनानी है तो उसमें हमें कौन काम करेगा? पीसीआर सिस्टम, पीसीआर काम करेगा. ओके, दिस डीएनए रीजन कैन बी एनीथिंग the experimenter is interested in. For example, it might be a gene whose function a researcher want to understand. एक रिसर्चर को अगर किसी भी जीन का फंक्शन समझना है तो वो भी हो सकता है. और जेनेटिक मेकर यूज टू फॉरेंसिक साइंटिस्ट टू मैच क्राइम सीन डीएनए विद सस्पेक्ट. ओके, फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो होते हैं वो कई बार क्राइम सीन में डीएनए को मैच करने के लिए सस्पेक्ट करते हैं, तो बस उसके लिए काम में आता है. Typically, the goal of PCR is to make enough of the target DNA region, that is, it can be analyzed or used in some other way.
For instance, DNA amplified by PCR may be sent for sequencing visualized by gel electrophoresis or cloned into a plasmid for further experimentation. PCR is used in many areas of biology and medicine, including molecular biology research, medical diagnostics, and even some branches of ecology. कई जगहों पे यूज हो रहा है, देखिए इनका बायोलॉजी में भी हो रहा है, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में भी हो रहा है और इकोलॉजी ब्रांच में भी हो रहा है. नाउ बी पार्ट, डिस्क्राइब 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर. पीसीआर के आपको 3 स्टेप्स बताना है. ये डायग्राम बताया मैंने, देखिए आपको, और इन डायग्राम में तीनों स्टेप भी बताए हैं. दिख रहा है आपको डायग्राम? डेनेचुरेशन, एनीलिंग एंड इलोंगेशन. Now B part, describe 3 steps involving the mechanism of PCR. उसका explanation. One cycle of polymerase chain reaction involves 3 basic steps. इसके 3 main steps होते हैं. That is denaturation. The desired DNA is heated to a high temperature. जो भी DNA आपको चाहिए उसको बहुत ही ज्यादा high temperature, that is 91 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, and forms a single stranded DNA. उसका single stranded DNA बनाया जाता है. It results in the separation of 2 strands of DNA, and each of which would function as a template for the synthesis of a new molecule of DNA. Then second step is annealing. It is a process in which the 2 primers hybridize to each the strands of DNA. It requires a temperature of 55 degrees Celsius. Then coming to polymerization. In this step, the Taq polymerase carries out the synthesis of the DNA region between the 2 primers by using deoxyribonucleotides, that is DNTPase and Mg2+. The optimum temperature for polymerization reaction is 72 degrees Celsius. Coming to question number 3, A part, give any 4 significance of fertilization in human. चलिए इसके सिग्निफिकेंस देखते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है फर्टिलाइजेशन के. फर्टिलाइजेशन मेंटेन्स द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूली फॉर्म्ड जाइगोट. इट कंबाइंस कैरेक्टर्स फ्रॉम द 2 पेरेंट्स ब्रिंगिंग अबाउट वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग. अभी ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन सेम टाइप तो नहीं रहेगा, तो उनमें कुछ वेरिएशन लाने के लिए क्या करता है, कंबाइन करता है पेरेंट्स के दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स को. ओके, It determines the sex of the offspring. Offspring के sex को भी determine करेगा. Fertilization introduces contrioles in the cell which are missing in the ovum. Got it? Coming to B part of the same question. Mention the names of any 2 organs which derived from ectoderm and mesoderm. तो इसके आंसर है germ layer. First, a group of cell in an embryo that interacts with each other as the embryo develops and contribute to the formation of all organs and tissues is called germ layer. Germ layer क्या होता है वो मैंने explain किया है. Second point, except for sponges, all animals form 2 or 3 germ layers. हर एक एनिमल में 2 या 2 से ज्यादा germ layer होती है, लेकिन sponges को छोड़ के sponges में नहीं होती. The germ layers develop early in embryonic life. कभी develop होती है? Early embryonic life में develop हो जाती है through the process of gastrulation. It consists of endoderm. एंडोडर्म क्या होती है, अंदर वाली लेयर, और एक्टोडर्म आउटर वाली लेयर, और मीजोडर्म मिडल में जो आती है. ओके, अभी इन तीनों लेयर के बारे में पढ़ेंगे. एक्टोडर्म, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर दैट फॉर्म्स नेल्स, हेयर्स एक्सेट्रा. एंडोडर्म, इनर मोस्ट लेयर दैट फॉर्म्स स्टमक, कोलन, यूरिनरी ब्लैडर एक्सेट्रा. और मीजोडर्म क्या बन करता है, मिडल लेयर है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म विच फॉर्म्स बोन्स, कार्टिलेजेस एक्सेट्रा. Together the 3 germ layer will give rise to every organ in the body. बॉडी के हर एक ऑर्गन में ये तीनों लेयर क्या करती है, हेल्प करती है. From skin and hair to the digestive tract. Coming to the question number 3, 31A. Give any 2 functions of cerebellum. चलिए cerebellum के functions देख लेते हैं. Okay, cerebellum. The cerebellum is located in the posterior region of the brain. Brain के posterior region के उधर locate होता है, और ये hind brain का part है. The cerebellum is divided into 2 cerebellar hemisphere. ये 2 cerebellar hemisphere में divide है, और it contains 1 vermis at the center. Functions of cerebellum देखते हैं. The cerebellum maintains the balance of the body. Body के balance को बनाए रखता है. It also coordinates various muscular activity on the body. Body के अलग अलग muscular activities का भी ध्यान रखता है. B part. Write the names of any 4 motor cranial nerves with their appropriate serial number.
उनके सही से सीरियल नंबर्स के साथ आपको क्या करना है, मेंशन करना है। कोई भी 4 मोटर कार्नियल नर्व्स, मोटर कार्नियल नर्व्स फर्स्ट, 3 ऑक्यूलो मोटर नर्व, क्या है, ऑक्यूलो मोटर नर्व, देन 4th ट्रोक्लियर नर्व, 6th एब्ड्यूकेंस नर्व, एब्ड्यूसेंस नर्व्स, देन उसके बाद में आ गया 9 स्पाइनल एसेसरी या कार्नियल एसेसरी नर्व, 12 हाइपोग्लोसल, गॉट इट, which hormone stimulates liver for glycogenesis and glucogenolysis। देखते हैं ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है। ग्लाइकोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजीन सिंथेसिस, ग्लाइकोजीन का बनना, ओके, ग्लाइकोजीन सिंथेसिस इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर एडेड टू द ग्लाइकोजीन चेन फॉर स्टोरेज। This process is activated during rest by the pericycle in the liver and is also activated by insulin in response to high blood glucose level. Hormone stimulating glycogenesis. The hormone that stimulates glycogenesis is insulin. कौन सा हार्मोन है वो, इंसुलिन, in response to high blood glucose level. Glycogenesis is the process by which excess glucose molecules are added to the glycogen chain so that they can be stored ready for use at a later date. क्या हमारा अभी जो पूरा क्लास 12th के पेपर का सॉल्यूशन था वो खत्म होता है। ओके बच्चों।